Hi everyone, I am Gyanshri. Hi everyone, I'm Sonali. We welcome you all to the series Alum Tales, an initiative by Chemocronies, the Chemistry Society of IIT Delhi. In this series, we will be honoring the alumni, knowing their tales, journey at, during, and after IIT Delhi. So, for this episode, we have with us another bright alumnus of IIT Delhi. He has secured All India Rank 59 in IIT JAM, qualified for JRF NET CSIR with All India Rank 57, 62, and 72 held in December 2017, June 2018, and December 2018, respectively, and secured All India Rank 3rd in GATE 2019. Currently, he is a scientist at Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India. Before joining DST, he has also worked in ONGC as executive officer. We are talking about Shubham Goyal. So, everyone, let's welcome Shubham. हाय शुभम, आपका इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you for offering me this opportunity to interact with all of you, Gyanshri and Sonali. So yes, starting from very first question, when did you come to know about IIT JAM? और आपने IIT को ही क्यों ऑप्ट किया? Because MSc के लिए IIT के अलावा भी बहुत से prestigious institutes and universities हैं, जैसे ISC, ISERS, PU, BHU. So why IIT? Okay, IIT JAM के बारे में मुझे शुरू से पता था because my sister is also MSc Chemistry from IIT Roorkee. So मेरे को शुरू से ही पता था कि IIT JAM as such पेपर होता है. But IIT क्यों चुना? That's a very difficult question. ISERS was actually उसकी mindset होती है कि PhDs में ज़्यादा फोकस्ड होता है, वो रिसर्च ओरिएंटेड होता है. IIT दिल्ली की ऐसी इमेज नहीं है, तो ऐसे तो IIT का नाम भी है और IIT में सब जाना चाहते हैं. 12th के बाद मैंने JEE भी दिया था 2-3 बार, तो इसलिए आई वांटेड टू गो इन IIT. ओके, ये मुझे लगता है काफी लोगों का रीजन होता है कि IIT का टैग तो Yes. चाहिए है, या तो Yes. GMENS के जी एडवांस के थ्रू या फिर IIT JAM के थ्रू. इवन मैंने सेकेंड ईयर में भी JEE दिया था, सेकेंड ईयर ऑफ BSc. Okay. दैट वाज Okay. थर्ड अटेम्प्ट फॉर JEE. So, now Shubham, we would love to hear about your academic experience and the faculty at the IIT Delhi and about your labs. Delhi's experience has been amazing in my life. मतलब the most amazing thing I love about IIT is the discipline. डिसिप्लिन एज इन की 4 month सेमेस्टर इज देयर. तो 1 महीना आपका कोर्स वर्क होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, फिर 1 महीना कोर्स वर्क होगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगा, फिर 1 महीना कोर्स वर्क होगा, फिर आपका एग्जाम होगा. तो ये सब जो चीज़ होती है, ये आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आती है, जो कि एकदम लास्ट तक आपको हेल्प करेगी हमेशा, चाहे वो IIT में हो, चाहे वो PhD में हो उसके बाद, या फिर आपकी जॉब में हो. हर जगह ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी. तो आपका डिसिप्लिन जो बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए. Labs were okay, but I think DU की lab was more better than IIT in terms of openness. जैसे केमिकल सारे ओपन हैं labs में हमारे पास DU में, लेकिन IIT में ऐसा नहीं होता था. जो केमिकल रिक्वायर्ड है वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा. बट एज फॉर फैसिलिटीज जैसे इक्विपमेंट वगैरह, तो वो ऑब्वियसली IIT इज नोन फॉर दैट. IIT में ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट हैं, हाई हैंड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो इम्प्रूव होते रहते हैं. तो इक्विपमेंट वाइज इट वाज वेरी वेल. एंड सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसमें तो आपको इंडिविजुअली सारे इक्विपमेंट चलाने को मिलते हैं. तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. आई थिंक और यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में या तो अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर अवेलेबिलिटी है तो फिर उसको लॉक एंड की में रखा जाता है. Right. So IIT gives that exposure to you to individually handle that equipment. And as a scientist in DST, we are promoting this thing that every equipment should be not put under lock and key, and that it should be given free hand to students to use every equipment. Okay, this is a nice initiative. So were there any extracurricular activities you were part of apart from studies? Apart from studies in IIT, not as such, but we used to play sometimes in the hostel, like badminton or
In the last semester, our hostel has placed football right in the here, so we used to play till 3 a.m. That's great. So, Shubham, the best part of IT is hostel life. We would love to hear about your hostel experience or any memorable day or incident you remember of. Hostel life was is very amazing portion of IIT. मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा हॉस्टल में, और इनफैक्ट तुम लोग की वजह से मैं अपने हॉस्टल में ही बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो लाइक इट वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस इन द हॉस्टल। और सेकेंड ईयर में जब गेट की प्रिपरेशन करनी थी, तो उस टाइम पे हॉस्टल का एनवायरनमेंट वाज लाइक वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर प्रिपरेशन। सो मुझे अभी भी वो टाइम याद आता है जब मैं मतलब हॉस्टल में सिर्फ पढ़ाई करता रहता था और सिर्फ नीचे खाना खाने के लिए आता था और फिर वापस चला जाता था पढ़ने के लिए। तो लाइक इट वाज ऑसम एनवायरनमेंट फॉर मी। ओके। तो आज के समय में हम एज अ स्टूडेंट जिस चीज को सबसे ज्यादा फेस करते हैं वो है स्ट्रेस। सो हाउ डिड यू मैनेज योर सेमेस्टर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड थर्ड सेमेस्टर से प्रोजेक्ट लैब भी स्टार्ट हो जाती है ऑल टुगेदर, एज यू वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड सीएसआईआर नेट? फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसआईआर नेट के लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया हमने। हम लोग सब, हमारी क्लास वाज आई मस्ट से ब्रिलियंट बैच। तो उसके बाद फिर कभी टेंशन नहीं हुई कि नेट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, सब लोग का गेट पे फोकस था। तो ये पहला पॉइंट ये कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही नेट क्वालिफाई कर लीजिए, तो आपको अगले 1.5 साल टेंशन नहीं होगी कि आपको नेट क्लियर करना है। ठीक है, आपके पास प्रेशर नहीं होगा कि आपको गेट नहीं हुआ तो आपका नेट भी नहीं हुआ तो आपको पीएचडी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो, जो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, उसके बेसिस पे बिना किसी कोचिंग के बिना कुछ किए आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप आईआईटी दिल्ली में आए हो, किसी आईआईटी किसी और आईआईटी में भी आए हो, आपकी इतनी प्रिपरेशन से फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जेआरएफ हो जाएगा बहुत आसानी से। उसके बाद अगले 2 साल की आपकी स्ट्रेस खत्म, जेआरएफ। अच्छा, नेक्स्ट गेट। गेट की प्रिपरेशन एज सच सितंबर अक्टूबर में भी अगर आप शुरू करेंगे थर्ड सेमेस्टर में तो इट इज वेरी वेल इनफ। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि आपको सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, आई पर्सनली फील कि सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है एट आईआईटी दिल्ली, other IITs I don't know much about, but at IIT Delhi the second semester is so well designed that आपका जो गेट की तैयारी है ना उसकी 90% पोर्शन आपका सेकेंड सेमेस्टर में कवर हो जाएगा। वो बहुत स्ट्रेसफुल सेमेस्टर है, उसमें 6 कोर्सेज हैं आपके पास। ठीक है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, आपको सोने तक का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो जो 4 महीने का सेमेस्टर होगा वो आपको इतना कुछ सिखाएगा कि आपको गेट में कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस आपको जितना ज्यादा होगा आपको स्ट्रेस उतनी कम होगी। अब आपने सेकंड सेमेस्टर अच्छे से क्वालिफाई किया, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आ गया। थर्ड सेमेस्टर में कोर्स 4 होते हैं लेकिन प्रेशर थोड़ा रिलीज आता है। ठीक है, और आप ओरिएंट हो जाते हो टुवर्ड्स गेट, गेट की प्रिपरेशन। तो आप सितंबर अक्टूबर से जब तैयारी शुरू करोगे तो ये फील कि आपको इतना कुछ आता है, आपने जो गेट का सिलेबस उधर कर देखोगे तो आपको इतना कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी आपको आते होंगे कि आप प्रेशर आपको वहीं कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार अब तैयारी क्या करनी है, अब तो आपको ग्रूम करना है। एक्चुअली यू आर ग्रूमिंग योरसेल्फ इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दैट्स ऑल। सो एज सच स्ट्रेस तो यही है आईआईटी में कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर अपने आपको कंटिन्यूअस रखना है। वो जो डिसिप्लिन आपको आईआईटी सिखाना चाह रही है उसको सीखना है, ना कि ये कि आप लास्ट दिन स्टडी करो एग्जाम में। फॉर्चुनेटली आपको आपको 1 ईयर में 2 अटेम्प्ट्स देने का मौका मिला फॉर सीएसआईआर नेट, बट मुझे लगता है अभी तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली सीएसआईआर डेट ही अनाउंस नहीं कर रहा है कि कब हम लोग फाइनली सीएसआईआर नेट दे पाएंगे। सो या यदि यू शुड थिंक ऑफ दैट कि इट्स ओके, इट इज हैपनिंग विद यू, इट इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ योर बैचमेट्स। तो लाइक इट इज ओके, जो होगा वो आप सबके साथ होगा, किसी एक के साथ पर्टिकुलरली ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, एग्जाम अपॉर्चुनिटीज जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। मैंने 3 बार नेट इसलिए दिया, थर्ड वाला तो मैंने लिटरली इसलिए दिया था कि चलो देख के आते हैं कि कितना आता है अपने को। तो लाइक इट वाज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। कई लोग बोल रहे थे तेरा 2 बार नेट है, जेआरएफ है, व्हाई आर यू गोइंग फॉर द थर्ड टाइम? सो आई वेंट ऑन कि चलो ठीक है देख के आते हैं, पता चलेगा कितना है। ऑल्दो आई नो नेट इज वेरी वेरी टफ, नेट इज वेरी टफ देन गेट, and I secured exactly the same marks as the cutoff. So I knew I was in deep water, so I had to study hard. तो उसके बाद मैंने 1.5 महीना बहुत अच्छे से पढ़ाई की ताकि जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं वो मुझे पता चल गया नेट में एक्चुअली कहाँ पर है, मैं कहाँ पर लूज कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे पता चल गई, तो फिर गेट की तैयारी ऑब्वियसली अच्छी हो जाती है। एग्जैक्टली हम जितनी बार एग्जाम देते हैं मुझे लगता है उतनी बार
हम उस एग्जाम प्रेशर को फील कर पाते हैं, तो वो यस, बेनिफिशियली होता है, राइट? बट Okay. एग्जाम प्रेशर को गेट में फील नहीं करना है. Right. So, क्या आपके मन में कभी केमिस्ट्री को छोड़ने का ख्याल आया है? लाइक किसी और फील्ड में जाने का आपने कभी सोचा? मुझे केमिस्ट्री में आने का ही ख्याल नहीं आया था 12th के बाद. ओके। ओके. अभी तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि अभी आप ड्यू की कट ऑफ देखिए कितनी ज्यादा है. तो उस हाँ. टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, मेरे नंबर कम थे और टीओ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा ज़्यादा जा रही थी. तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि केमिस्ट्री के अलावा कोई और सब्जेक्ट मुझे नहीं मिल रहा था. तो ठीक है, डेस्टिनी मुझे लेके आई केमिस्ट्री के अंदर, और फिर केमिस्ट्री में ठीक है जो आ गया एक्सेप्टेड. डीयू में तो क्या कर सकते हैं, अब जेई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. मेरी जिंदगी का मोटो था कि मैंने कभी ड्रॉप नहीं करना है. 12th के बाद भी ड्रॉप नहीं करना था, बीएससी के बाद भी नहीं, एमएससी के बाद भी नहीं, और कभी ड्रॉप नहीं करना था मेरे को अपना ईयर. वो ईयर एक वेस्ट हो जाता है. तो ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी हैंड में उसका बेस्ट ऑप्शन आप मतलब बेस्ट यूज कीजिए. यही चलता. So chemistry was not your choice, but ultimately, at least chemistry chose you. Yeah, chemistry was not my cup of tea. My cup of tea is biology and computer science, both of which I rejected in 11th. So how did you prepare for GATE and NET? क्या आपने कोई कोचिंग की or just by self study you cracked the exam? Okay, I attended coaching for JAM in the, I think BSc 4th semester, क्योंकि पहले से ही पता था कि जैम होता है, और तो सब लोग जा रहे थे, तो वी ऑल्सो वेंट एंड वी जॉइंड द कोचिंग. सो लाइक इट वाज ओके. बट फॉर नेट आई नेवर प्रिपेयर्ड एनीथिंग. आपकी जीआरएफ, सॉरी, जेई जैम की कोचिंग जो है, उससे आपने जैम क्लियर किया, आप आईटी दिल्ली में आए, तो ठीक है, यू आर वेरी वेल नॉलेजेबल. ठीक है, आप उस नॉलेज से, मैंने पहले ही बताया कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही जेआरएफ क्लियर कर सकते हो. नेट के लिए कोई एडिशनल कोचिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कभी नहीं करनी चाहिए. वो सिर्फ अगर आपकी जेब में पैसे ज़्यादा हैं तो आप मेरे को दे दीजिएगा, लेकिन जेआरएफ की कोचिंग ज्वाइन मत कीजिएगा कभी. ठीक है. एंड एज फार एज गेट इज कंसर्न, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो गेट की तैयारी आराम से सेल थ्रू जाएगी. गेट की तैयारी के लिए मुश्किल से 3-4 महीने चाहिए होते हैं. So, what were your preparation strategies and books which will further help other aspirants in cracking the exam diligently like you? और किन mistakes को हमें avoid करना चाहिए to perform better in the exam? मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने 4 महीने दिए अपने आप को. सितंबर से मैंने स्टार्टिंग की थी, लगभग मिड सितंबर से मैंने मतलब फोकस किया था कि चलो गेट क्रैक करते हैं, क्योंकि हमारे एक सीनियर का भी गेट हो चुका था. तो उसके बाद आई वाज लाइक फोकस्ड कि ठीक है, अब गेट करना है, वो एनजीसी में जाएंगे, वो बहुत पैसा है एनजीसी के अंदर. तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो रहता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टडी करना है. ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन. ठीक है, सारे अवेलेबल हैं मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी, और इधर उधर सब हर जगह मिल जाते हैं. तो लाइक आपको पहले सारे साल के लगभग 20-25 साल के क्वेश्चन पेपर्स सिर्फ रीड करने हैं. सिर्फ रीड, माइंडेड, सिर्फ रीड करने हैं. ठीक है, सितंबर मंथ में आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स रीड करने हैं. सितंबर मंथ तक आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास इतनी नॉलेज होती है, आप 1 साल बिता चुके हो आईआईटी के अंदर, आपके पास इतनी नॉलेज होती है कि आप हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा क्वेश्चन को कितनी ज्यादा वेटेज दी जा रही है. तो आप 20 साल के जब पेपर स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, इस टॉपिक की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक में, आपको सब पता चल जाएगा हर टॉपिक के बारे में. तो जब आप तैयारी करने जाओगे, ठीक है, आपने कोई बुक खोली, आपने किसी के नोट्स खोले, अपने नोट्स खोले, तो आप जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको रिकॉल होगा कि आपने जो प्रीवियस ईयर पढ़े थे, तो ये टॉपिक तो मुश्किल से 10 साल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, तो यू कैन स्किप दैट टॉपिक, यू कैन पिक अप द मेन टॉपिक, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है. ठीक है, तो उस तरीके के आप टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं. तो लाइक दिस वाज माय स्ट्रेटजी. मैंने पहले प्रीवियस ईयर स्टडी किए, स्टडी मीन्स रीड किए. उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंगली स्टार्ट की. उसके बाद फिर जब दिसंबर तक आई वाज 15 दिसंबर का आई थिंक मेरा नेट था, उसके बाद 30th तक आई वाइंडेड अप माय प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम. उसके बाद फिर रिवीजन और प्रीवियस ईयर अब सॉल्व करना है आपको. स्टार्टिंग ऑफ 1981 से लेकर 2018, 19, 20 तक पूरे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है. ठीक है, आपके पास सब चीज़ के सॉल्यूशन
होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। वेरी वेल प्रिपेयर करना आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऑफ लास्ट 20 to 30 years, ठीक है। वो काम आपका 1 महीने में होगा। और लास्ट का एक हफ्ता इस पर शेड्यूलिंग, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि गलती क्या करते हैं बच्चे। बच्चे गलतियाँ करते हैं कि ऑनलाइन किसी की यूट्यूब वीडियो देखी, उसने बोला कि आप पहले फिजिकल केमिस्ट्री करो, आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, आप उसके बाद ये करो, आप इनऑर्गेनिक रटने वाली है उसको बाद में करो, ठीक है। आप जनरल एप्टीट्यूड पे ध्यान मत दो, या जनरल एप्टीट्यूड लास्ट 1 महीने में कर लो, वो सब बकवास है। जो आपको अच्छा लगता है वो शुरू में प्रिपेयर करो, उसके बाद उसको साइड रख दो। और अपना जो मेन चंक टाइम है, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो मेन चंक ऑफ टाइम है, उसको आप अपने वीक सब्जेक्ट में दो, जिससे आप ज़्यादा टाइम में अपना कम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, तो स्ट्रॉन्ग है तो वो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग है, लाइक, ठीक है। तो मैं सेकंड सेमेस्टर में जब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी, तो लाइक उसके कंसेप्ट मेरे को हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। तो उसको मेरे को मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तो आई हैव टू पिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। उसके बाद आपका दिसंबर एंड तक ऐसा होगा कि सारे सब्जेक्ट्स लेवल में आ जाएंगे। उसके बाद देन यू कैन पिक प्रीवियस ईयर। और जनरल एप्टीट्यूड ऐसी चीज़ है, जनरल एप्टीट्यूड में आपको शुरू से ही क्वेश्चन जो है ना छोड़ने नहीं है। नेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल एप्टीट्यूड। मैंने हाँ नेट इसलिए भी दिया था कि जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन हो जाती है। यू शुड अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ नेट फॉर प्रैक्टिस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड फॉर गेट। गेट के क्वेश्चन आसान रहते हैं एज कम्पेयर टू नेट। और लास्ट का 1 वीक आपको शेड्यूलिंग करनी है कि आप गेट का पेपर कैसे दोगे। जैसे आपकी 9:30 की शिफ्ट है अगर, और आप सुबह को 6 बजे सोने वाले हो रोज, तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी वो करनी, मतलब प्रोग्राम करनी पड़ेगी कि आप रोज 1-1 घंटा पीछे करोगे, तब आप 7 दिन में जाके लास्ट के दिन 12 बजे सो पाओगे और सुबह 6 बजे उठ के आप सेंटर पे जा पाओगे। तो वो लास्ट का 1 वीक जो होता है ना, वो आपको एकदम चिल रहना है। और यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आपने जितनी मेहनत की दैट इज वेरी सफिशिएंट फॉर गेटिंग यू थ्रू गेट, ठीक है। कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना है। और आपको कॉन्फिडेंस है तो बार बार रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है। आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी एट ऑल। मैंने सिर्फ एक बार रिवीजन किया था आई थिंक, तो आई हैड कॉन्फिडेंस इन माय प्रिपरेशन इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 3 महीने की जो प्रिपरेशन थी दैट वाज वेरी इंटेंस, तो आई हैड कॉन्फिडेंस। और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर सॉरी क्वेश्चन पेपर लगा रहा हूँ जब मैं जनवरी में, तो जो जो कंसेप्ट में मुझे लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, तो एक बार अपने नोट्स उठा के देख लो, अपने बुक्स उठा कर देख लो, या जहाँ पर आपकी रेफरेंस बुक आपने पढ़ा था पहले उसको उठा कर देख लो, तो वो डाउट देन एंड देयर क्लियर हो जाता है। तो Okay. लाइक जनवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीवियस ईयर एज वेल एज फॉर 1 वीक शेड्यूलिंग। Okay. So in short, screening of previous year questions is, I think, very important. And Yes. after that, we should design our syllabus and prepare accordingly. And then Yes. we should solve previous year questions Yes. according to you. Okay. This Okay. strategy can vary for different candidates, मतलब जो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकता है, बट हाँ, कीप इन हर माइंड पर्सन की कि स्पेसिफिक होनी सारा, चाहिए। यस, बट कीप इन माइंड कि पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोऑर्डिनेशन आपको बहुत पसंद है, कोऑर्डिनेशन लेके बैठ गए हो और बाकी सब छूट गया है। हाँ हाँ, Uh-huh. right. Okay. So, have you done any internships during your masters? And also, those internships help you in interviews, in PSUs, or in any job interview? As students very much worry about their CV or resume. No, I did nothing, absolutely nothing till MSc final also. I had done no internship. I had attended no interviews, nothing at all. Okay. My MSc like sailed through everything. तो preparation करते वक्त only PSU was your aim, or you were thinking about PhD also? And what were the other options in your mind? PhD के लिए तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ, बट एक्चुअली आई लव रिसर्च। और बायो में मेरे को इंटरेस्ट तभी पता चला कि लाइक मैंने कहा था कि मैंने 11th में ड्रॉप कर दिया बायो, बट मुझे बहुत पसंद थी बायो। तो थर्ड सेमेस्टर में आई ऑप्टेड फॉर बायो केमिस्ट्री, मतलब उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला कि दैट आई वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन बायो। तो बायो से ही फिर बायो केमिस्ट्री से बेसिकली मैं PhD की तरफ ओरिएंट हो गया था बहुत ज़्यादा। बट एक्चुअल में सिनेरियो ये है कि PhD के बाद लाइक जॉब्स आर वेरी 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 कॉम्पिटिटिव। मतलब आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन फेस करने के बाद आपको जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स कम मिलेंगी, उसका टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा है। सो आई कुडंट वेट फॉर दैट लॉन्ग।
तो इसलिए आई ड्रॉप्ड माय आइडिया फॉर पीएचडी एंड वेंट इन फॉर पीएसयू, बिग गेट Okay. बेसिकली. So, getting a job in ONGC is a first priority for many master students. तो जब आपकी ONGC में जॉब लगी थी, then what was your feeling? फीलिंग मेरी ऐसा कोई स्पेशल फीलिंग नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जॉब लग जाएगी. जैसे कि गेट में अच्छी प्रिपरेशन थी, तो आई न्यू कि मेरी टॉप में रैंक आ जाएगी. सेम सागर का था, लाइक सागर एंड आई वाज वेरी वेरी नॉर्मल. वी न्यू दैट वी विल गो इनटू टॉप 10, सो वी वर वेरी नॉर्मल. और फिर ओएनजीसी में भी वी वर वेरी नॉर्मल, लाइक कि ठीक है, वी न्यू ये वी विल गेट थ्रू. यही कॉन्फिडेंस चाहिए हमें अभी जिंदगी में. यस यस. आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने अच्छे से लगा पा रहे होंगे, आप खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अगर आपने क्वेश्चन पेपर लगाते वक्त ये स्कोर किया कि आपके 70 आ गए हैं 100 में से, तो ठीक है, मेन एग्जाम में आपके कितने 55 60 70 मतलब इस रेंज में स्कोर आ सकता है. ठीक है, तो उसकी बहुत ज्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाती है, वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है. So Shubham, could you please sum up the whole process of becoming a scientist or executive officer in ONGC, or basically getting a job in at any post in ONGC? First of all, the main thing is gate. After you clear the gate, then only there is opportunity for filling the ONGC form and going through the interview. So like ONGC's criteria is also the same as DST. It is like you first give the gate, go through the form process, like they sort by the gate score. So if you are above the cutoff, then you will be called for interview in ONGC. Interview is here only in Delhi. So the interview is taken by a panel of I think 6 or 7. They are also like officers in ONGC only. So like they take the interview and then they grade out of 15 marks. So like ONGC has kept 100 marks for total. Out of this, 60 is for gate, 15 is for interview, 5 marks is for PhD, and 20 marks is for essential qualification, that is MSc. So like it is the backdrop of 100 marks. So इसमें से जो 15 नंबर होते हैं वो इंटरव्यू के लिए होते हैं. तो उसमें से भी कट ऑफ होती है, आपको 9 से अबव लाने हैं. 9 से आप ऊपर लाएंगे तो यू आर ओके फॉर क्वालिफिकेशन. आपको 9 से कम है तो इवन इफ यू गेट फुल इन गेट यू आर AIR 1 or 2 or you will be out because you have not qualified the cutoff for interview. So in after giving the interview, if you are selected, then they prepare a merit list, and according to that they give the posting and all that is done after that. और ऐसा है क्या कि for female candidates the jobs are less in ONGC, या उनके पर्सपेक्टिव में यदि हम ONGC को देखें तो आप कैसे देखेंगे? ऐसा नहीं है कि ONGC में गर्ल्स के लिए जॉब कम है, बट ऐसा इसलिए है कि जो फील्ड जॉब्स हैं, अब ONGC इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो ऑब्वियसली इट इज अ मोर ऑफ अ फील्ड ओरिएंटेड जॉब. तो फील्ड में ONGC की साइकोलॉजी एज अ होल ये है कि फील्ड में लड़कियों को पोस्टिंग नहीं दी जाती है, या दी जाती है तो बहुत बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं, मतलब एक या दो ऐसे करके रहते हैं बस. तो ये वाली जो मतलब कंडीशन है, इसमें आप खुद देख सकते हो आपका जो रेशो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है. तो ये चीज़ फिर हायरिंग में भी दिखेगा. अगर आपको फील्ड में गर्ल्स की जरूरत नहीं है, अगर आप जरूरत है भी, आप भेज नहीं रहे हो उनको, ऑफिस में पोस्टिंग दे रहे हो, ठीक है, तो फिर हायरिंग में भी ये चीज दिखेगी. आपको हायरिंग में भी कम लड़कियां चाहिए. तो इवन इफ यू स्कोर एट पार विद बॉयज, देन ऑल्सो द सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी इज लेस फॉर गर्ल्स, बिकॉज इट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपकी ONGC की जो RGL लैब्स हैं या जो रीजनल लैब्स हैं आपकी ये बॉम्बे में रिसर्च लैब्स, उसमें आपकी पोस्टिंग वैकेंसीज कितनी है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि लड़कियों को कितनी हायरिंग की जाती है. ओके, तो बेसिकली सिंस ऑफशोर पोस्टिंग नहीं करती ONGC या कम करती है, तो प्रोबेबिलिटी टू हायर फीमेल ऑफशोर नहीं, कैंडिडेट कम हो जाती है. ऑफशोर नहीं, ऑन साइट. ऑन ऑन साइट साइट. मतलब फील्ड पोस्टिंग्स शोर में भी, मतलब ऑन शोर भी हो सकती हैं. मतलब मेरी ऑन शोर पोस्टिंग थी ओके. और सागर की ऑफशोर पोस्टिंग है जैसे. तो लाइक ऑन शोर और ऑफशोर दोनों में ही फील्ड पोस्टिंग होती हैं. जैसे जो ड्रिलिंग होती है वो बोथ ऑफशोर एंड ऑन शोर रहती है. तो ऑन शोर ओके. में भी ओके. हो चाहे ऑफशोर में हो, लड़कियों की पोस्टिंग्स आर वेरी वेरी स्केर्स. ओके. ओके. तो लाइक इफ अ गर्ल इज टारगेटिंग ONGC, तो उनके लिए कंपटीशन
लड़कों से ज़्यादा टफ है, क्योंकि उनको पूरे उस कंपटीशन में से आगे ऊपर उठ के आना है, और फिर अपने गेट स्कोर की वजह से ही अपने जो 60 नंबर का मेजर चंक है उसको बढ़ाना है। क्योंकि आप इंटरव्यू में अगर सेलेक्ट हो जाते हो, आपको अगर उनको नहीं लेना है तो आपको 8 नंबर दे देंगे, 8 नंबर, तो यू आर हम्म। डिस्क्वालीफाइड। लेकिन अगर आपका 1 या 2 रैंक है, ठीक है, आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, तो ऑब्वियसली दिल पास यू। तो अगर आपके 9 या 10 नंबर भी हैं, ठीक है, तो आपको जो बचा हुआ 5-6 नंबर का जो गैप है वो आपको गेट स्कोर से कवर करना है बेसिकली। तो आपको यू हैव टू बी हाई अप इन द लेटर। ओके ओके। बट आई मस्ट से, लड़कियों के लिए जॉब बहुत अच्छी है ओएनजीसी में। मतलब आई आई रिकमेंड कि गर्ल्स के लिए ओएनजीसी से अच्छी दूसरी जॉब नहीं है। बट नॉट बहुत फॉर कम है। बॉयज, बट बहुत कम ओके है, यस ऑब्वियसली। ओके ओके। And what was the reason that you left such a prestigious job and that too within a year? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि ये मेरी पहली जॉब थी, तो मुझे बहुत सिखाया ओएनजीसी ने। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ओएनजीसी फॉर टीचिंग मी सो मच। आई गॉट very good immediate boss and very good boss of boss, so like my experience was very good with them. But as such, I heard from one of my friend, his word was that there is no intellectual growth in ONGC. What I will do today, that I will do for after 1 year, after 2 years, after 3 years, year on year I'll do the same thing. So there is no intellectual growth. So that is the main hamper of growth of a person in life. तो वही चीज मुझे थोड़ा मतलब नेगेटिव की तरफ ले जाती थी। तो इसलिए मैंने वो एनजीसी ड्रॉप करने का प्लान किया, और ड्रॉप करने का प्लान ऐसे ही नहीं किया, मतलब आई हैड अनदर अपॉर्चुनिटी एट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई आई ड्रॉप्ड। ऑब्वियसली यू शुडंट ड्रॉप एनी जॉब इफ यू डोंट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज Okay. यू विल डू, द जॉब इज वेरी वेरी मोनोटोनिक। आप एक ही तरह का काम करते रहोगे, पूरी लाइफ करते रहोगे, भर भर के पैसा मिलेगा आपको। पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम इन ओएनजीसी, ओएनजीसी में पैसा है। तो लाइक यही वाली बस एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आई ड्रॉप। और दूसरा मेरा 14 डेज ऑन ऑफ था ऑन शो, तो उसमें मेरे को नाइट शिफ्ट भी जाना होता था 7 डेज के लिए। तो लाइक नाइट शिफ्ट वॉज वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी। मतलब पूरा हेल्थ का बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, बॉडी साइकिल, स्लीप साइकिल, सारी साइकिल्स उल्टी सीधी हो जाती हैं। तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। अभी हम बहुत यंग हैं तो वी कैन कोप, बट आगे जाकर प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। इनफैक्ट आप अभी 4-5 साल अगर आप ऑन ऑफ करके बाद में आप सोचते आप ऑफिस ड्यूटी ले लोगे, वो उसका इफेक्ट लास्ट में दिखता है। Okay. डीएसटी के बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है, हम में से बहुत लोगों को तो इसके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं होता है। सो व्हेन डिड यू कम टू नो अबाउट दिस? When did you come to know about this? I came to know about DST when I got selected in DST. When I got a call that ठीक है आप आ जाओ DST ज्वाइन कर लो। क्योंकि बेसिकली इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया था डीआरडीओ के इंटरव्यू के थ्रू। डीआरडीओ का जो आरएसी होता है, रिक्रूटमेंट एनालिसिस असेसमेंट सेंटर, उसके थ्रू जो इंटरव्यू होता है उसी में डीएसटी की भी एक पोस्ट होती है। जैसे आपके ओएनजीसी में रहता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस केमिस्ट, सेकंड प्रेफरेंस यही रिजर्व है, इसी तरीके से आपकी डीआरडीओ में प्रेफरेंस थी, फर्स्ट प्रेफरेंस डीआरडीओ, सेकंड प्रेफरेंस डीएसटी। So I didn't get the first preference. Obviously, I was preparing for the first preference in the interview, but I didn't get that. तो जब मुझे DST मिला तो मैंने गूगल करना शुरू किया, लाइक व्हाट इज DST, क्या है क्या है। तो मुझे भी कुछ नहीं मिला। यू आर वेरी ट्रू कि DST के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। तो मैंने भी गूगल किया, मुझे कुछ नहीं मिला। वो सब मेरे को आगे ज्वाइन करने के बाद जानने को मिला। लाइक DST इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाता है। जैसे आईटी दिल्ली में अगर जैसे जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो सपोर्ट होते हैं, मतलब जो भी आपका R&D से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। Okay. So could you please tell us about the whole process of becoming a scientist at DST? Like there's just a written exam or just an interview, or what is the whole process? At the post of scientist B, it is basically through GATE only. So like DST gives opportunity to DRDO to hire scientist Bs for them. So like it is the same as ONGC. You get selected, shortlisted through GATE score, then you get called for interview. You give your interview, you get selected in interview, and then you can join simply either DRDO or DST.
So it But is in simply like ONGC. but in ONGC, the weightage for gate score is very high. So same is the case with DST. In DST also, DST is basically criteria is the same as DRDO. So like DRDO is preparing a list, like we have काउंसलिंग फॉर जेई, उसी की तरीके से लिस्ट बनती है। तो उस लिस्ट में टॉप, अगर आपने मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली है डीआरडीओ, तो आई विल गेट सेलेक्टेड इन डीआरडीओ अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस एंड माय मेरिट लिस्ट। तो उसी के हिसाब से फिर मेरे को डीएसटी मिलता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि डीएसटी का अलग है डीआरडीओ का अलग है। लेकिन इधर भी क्या वो वेटेज गेट के स्कोर को ज्यादा दिया जाता है। नहीं, ओएनजीसी में गेट का स्कोर 60% है अभी और 80% डीआरडीओ आई थिंक मैंने देखा। नहीं 60% ही 60 है। है। ओके। यस इट इज 60%। लेटेस्ट वाला मैंने नहीं चेक किया, आई डोंट, लेकिन वो 80 हो जाता है क्योंकि इट सेज 20 मार्क्स इज फॉर योर बेसिक क्वालिफिकेशन, दैट इज योर एमएससी। सो if you are not MSc, you are not eligible. If you are Right. eligible, you have done MSc, you will get 20 marks. So you can say that, but gate score is calculated by multiplying it by 0.06. Mhm. So it is like 60% gate weightage. It is 80% in DRDO. But So it that is more weightage in DRDO. yes, it is more in DRDO. Okay. And the 20 marks is for interview. एंड इंटरव्यू के बारे में यदि आप कुछ और बता सके कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, या डीएसटी ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए In DRDO or in ONGC? इन डीआरडीओ? There is no separate interview as such for DRDO and DST, but it is for basically DRDO. So you are going for like hiring, getting hired in DRDO. तो उसके इंटरव्यू में आपको डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको अपने कंट्री के डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए, उनकी स्टैब्लिशमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, और बेसिक क्वेश्चंस लाइक ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चंस, मतलब उसमें पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। ओके। तो लेकिन द मेन पॉइंट इज आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स मींस एनसीईआरटी ऑफ 11th and 12th शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड। ठीक है, उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आएंगे बीएससी लेवल के, थोड़े बहुत एमएससी लेवल के आएंगे, लेकिन दे आर वेरी वेरी बेसिक है। आपके अगर बेसिक क्लियर है, आपने गेट में रैंक क्लियर किया, कट ऑफ क्लियर करके इंटरव्यू में जा रहे हो, तो उतना बेसिक क्लियर होता है कि इंटरव्यूज कैन सेल्फ। ओके। आपको डीएसटी में काम करके कैसा लग रहा है? कुड यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एज अ साइंटिस्ट और वर्क कल्चर ओवर देयर? वर्क कल्चर इज बिल्कुल ऑफिस कल्चर है यहाँ पर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा ही रहता है लगभग ऑफिस कल्चर। और एज ए साइंटिस्ट इट्स ओके, लाइक वी गेट वेरी वेरी मच एक्सपोजर। जैसे मैंने बताया था कि मेरे को पीएचडी में बहुत इंटरेस्ट है, तो हमारे को एक्सपोजर मिलता है कि हम इंस्टीट्यूट्स में जाएं, विजिट करें, वहाँ पे देखें कि क्या फैसिलिटीज़ हैं और इक्विप करें, ये देखें कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आई एम टेलिंग अबाउट, ऑल ओवर इंडिया आपको पता चलता है कि किस पार्ट में क्या हो रहा है और आर&डी के क्या स्कोप है और कैसे आर&डी प्रोग्रेस कर रही है ऑल ओवर द कंट्री। तो लाइक मतलब उसमें जो आपकी माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी कि आप मतलब पूरी कंट्री को एक्सप्लोर कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। So finally, are you satisfied with your job or you are still looking for something else? One should never get satisfied in life. I will never get satisfied from any job. I don't, but I'm not looking for any other job right now. Okay, so you're not. हमेशा हमेशा मतलब प्रोग्रेसिव रहना चाहिए आपको। यू शुड गो टुवर्ड्स बेटर अपॉर्चुनिटीज हमेशा। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे लाइफ में तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी वहाँ पर। यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है, मुझे आगे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, दैट इज नॉट द गुड पॉइंट। So right now you like your job, you're not looking for another job, but obviously if any opportunity come, any better opportunity come, you will Yes, just grab the I'll grab opportunity. it. Yes, yes. Okay, In fact, everyone should do that. Yes. right. We agree. So tell us about some values from IIT which helped you in getting the job and becoming successful in your life. And as a person, IIT ने आपके माइंड को कैसे शेप किया? आईटी ने सबसे ज्यादा डिसिप्लिन सिखाया है लाइफ में। मैंने वैसे भी बताया अपनी आईटी की लाइफ के दौरान, मतलब जो आईटी डिसिप्लिन आपको सिखाना चाह रही है, अगर आप वो नहीं सीखोगे तो आप हमेशा लाइफ में लैग करोगे। मैंने कई मतलब बच्चों को ये बताया, मैं अपनी मतलब मेरी छोटी सिस्टर है, मैं उसको भी यही बताता हूँ
कि जितनी जल्दी वो आईआईटी वाला डिसिप्लिन सीख जाओ, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे आप डिसिप्लिन हो, आप डेली का काम डेली खत्म करते हो, ठीक है, ये मतलब ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों वाली बात है, तो डेली का काम डेली खत्म कर लो, बट आईआईटी में अगर आप ये इम्प्लाई करोगे, अगर आप डेली का काम डेली खत्म कर पा रहे हो, आपका टारगेट है कि मेरे को अक्टूबर नवंबर में गेट करना है, और आप डेली का काम डेली कर रहे हो, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जिस दिन एग्जाम होगा, पर्सनली मेरे लिए एग्जाम वाला दिन वॉज द मोस्ट चिल डे ऑफ द सेमेस्टर। जिस दिन एग्जाम होता था, मैं पूरी पूरी रात सोता था, पूरा पूरा दिन सोता था, जाके एग्जाम दे देता था, बस कुछ नहीं, कोई कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, तैयारी तो हमने कर रखी है ना पिछले एक महीने में, तो कोई एग्जाम में तैयारी करने की क्या जरूरत है। तो वो डिसिप्लिन वॉज द मेन की, जो मेरी आईटी जर्नी के दौरान मेरे साथ रही। और मतलब आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे को आईटी दिल्ली मिला, कि वहाँ पर सेमेस्टर इतना अच्छे से प्रोग्राम था और डिसिप्लिन इतना ज़्यादा सिखाया गया कि आगे फिर दिक्कत नहीं होगी कभी लाइफ में। होप सो। Now, so it's been 2 years since you passed out from IT. तो सबसे ज्यादा आप क्या मिस करते हैं? क्या मिस करते हैं? कंप्यूटर सर्विस सेंटर। कंप्यूटर सर्विस सेंटर वाज माय गो टू प्लेस, मतलब लाइक आई लव्ड कंप्यूटर्स। सो मैं मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता था, टाइम क्या मिलता था, मतलब मैं अपनी जो अक्टूबर नवंबर की जो चंक वाली तैयारी थी, वो मैंने कंप्यूटर सर्विस सेंटर में की थी। तो आई लव्ड यूजिंग कंप्यूटर्स देयर। और वहाँ का जो मतलब इन्वायरमेंट होता था वो एकदम मतलब इतना अच्छा था। मुझे लाइब्रेरी इतना पसंद नहीं आई, मतलब मैंने एक फ्रेंड की बात सुन के एक दिन लाइब्रेरी गया, बट मुझे बहुत बेकार माहौल लगा लाइब्रेरी का। आई वाज नेवर अ लाइब्रेरी पर्सन। तो लाइक कंप्यूटर सर्विस सेंटर आई मिस बैडली, आई मिस बैडली। Okay. Yeah. So, Shubham, any message you want to share with our viewers? मैसेज एज सच, अक्टूबर चल रहा है तो यही कि अगर आप गेट की तैयारी करना चाह रहे हो, यू वांट टू गेट गेट, तो अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है, बस 2 महीने हैं। अगर आपने अपना सेमेस्टर ढंग से निकाला है तो आपको अभी से स्टार्ट करना होगा। और एक मेन चीज़ और, कि दो नाव में कभी पैर नहीं रखना है एक साथ। अगर यू वांट टू डू पीएचडी तो आपका गेट से फोकस हट जाएगा, और अगर आप गेट करना चाहते हो तो आपका पीएचडी पे अगर आप फोकस करोगे तो आप गेट सही से नहीं दे पाओगे। तो दोनों ही केस में आपका लॉस है, ना आपका गेट होगा ढंग से, ना आप पीएचडी के लिए फोकस कर पाओगे। क्योंकि पीएचडी के लिए भी, अगर आपको पीएचडी के लिए जाना है तो आपको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बिल्ड करना होगा अपना। तो अगर आपका फोकस पीएचडी में है, ठीक है, यू आर रिसर्च ओरिएंटेड, तो आप गेट पे फोकस नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट डू जस्टिस विद बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। तो किसी एक चीज़ को शुरू से ही पकड़ लो कि आपको गेट करना है, तो ठीक है, मुझे गेट करना है। फिर आप बाकी सब चीज़ों को आप थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हो। साइडलाइन करने के बाद फिर आप अपना गेट पे फोकस करो। डन। Okay. So we should be more focused where we want to go exactly. यस, बट एक चीज़ और, डिजास्टर मैनेजमेंट रखना चाहिए हमेशा। मतलब आप गेट देने वाले हो, यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा गेट में हो जाएगा, आई विल गेट एयर वन, तो बहुत अच्छी बात है, आपका हो भी जाए। बट अगर आप ये सोचकर नेट नहीं दोगे, या BARC नहीं दोगे, या DARDO नहीं दोगे, तो ये बहुत गलत है। डिजास्टर मैनेजमेंट हमेशा होना चाहिए लाइफ में। तो ऑप्शंस इसलिए ज्यादा होने फॉर्म, चाहिए। ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, यू कैन ड्रॉप द अदर ऑप्शन, बट यू शुड कीप ऑप्शंस, यू शुड ऑलवेज फिल फॉर्म्स फॉर एवरी वैकेंसी, फॉर एवरी एग्जाम। वो चीज नहीं छोड़नी चाहिए कि आपको गेट करना है तो ठीक है, आपने वो वाला फॉर्म नहीं भरा BARC वाला, अगर आपका गेट नहीं हुआ तो आप कैसे जाओगे कहीं और? फिर आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो DRDO जाना है, तो सॉरी गेट करना है, ONGC जाना है, ठीक है, तो आपने DRDO फॉर्म नहीं भरा, क्यों नहीं भरा? क्योंकि DRDO में नहीं जाना है, ठीक है, नहीं जाना है, तो आपको ONGC नहीं मिला, अगर आपका BARC भी नहीं हुआ तो आप कैसे जाओगे? फॉर्म नहीं भरा है। लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करके चलना चाहिए हमेशा। So let's wrap up this with an interesting question. यदि आप कोई केमिस्ट्री apparatus होते, then what you want to become and why? Autoclave. I would like to be autoclave. I see myself as autoclave. And why? Do you know what autoclave is? No. Okay, autoclave is a device that is used to raise the pressure ताकि किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट उसके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाए, मतलब बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट लगता है ऑटोक्लेव में। अच्छा। ओके, एंड फॉर द व्हाई, बिकॉज फॉर द सेम रीजन कि आपके पास आप जितना प्रेशर आप डालोगे उतना ज्यादा आपका मतलब
यू विल ग्रो इन लाइफ उतना ज़्यादा। अगर आप जितना प्रेशर आप सस्टेन कर सकते हो, आपको उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप उतना ज़्यादा अपनी मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो कि हाँ दैट यू कैन सस्टेन दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर। और उतनी ज्यादा हमारा कैलिबर एंड एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, हम जैसे जैसे जितना प्रेशर हैंडल करना सीख लेंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Okay, that's interesting. So, thank you so much, Shubham. It's truly been amazing talking with you. It's been an insightful discussion and our viewers will learn so much after watching this. आपका कीमो क्रोनीज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome, and thanks from my side also that you have given a platform for me to share my opinion, my thoughts about my experience at IIT as well as at my job. Thank you so much. Thank you. So thank you everyone for watching this episode. We will bring much more episodes soon. So, stay tuned with us. Thank you. Thank you.